Students, now all today we will study about the focal length of the spherical mirror, because our next experiment is to find the focal length of the concave mirror and convex lens also. So it is must to know about its basic principle, basic concept, different points of it. So now you are seeing on screen, this is a spherical mirror. You are seeing, and definition is a mirror whose surface is cut off a spherical cell is called a spherical mirror. कोई स्फेरिकल कोई whose surface cut off the spherical cell, किसी spherical cell को हम लोग कट करते हैं that is called the spherical mirrors, and वहाँ पर वन साइड पॉलिश कर देते हैं. सपोज दैट मैं आपको एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ. ये आपका दिस इज अ spherical cell, and we cut at this point. So we find out this side type of the shape. If we polish them on upper side or lower side, या upper side कर सकते हैं या फिर lower side कर सकते हैं. तो इस दोनों टाइप्स के मिरर्स को ये हैं मिरर से बन जाता है. It is called the spherical mirror. It's called the spherical mirror, and there are two different type of the mirror, this mirror and this mirror. If the upper side be polished and inner side be reflected portion, so it's called the concave mirror. It is concave mirror, and this is convex lens, convex mirror. यहाँ पर इनर साइड आपकी पॉलिश्ड है और अपर साइड यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ द मिरर. टू टाइप्स ऑफ द मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर. इट्स आउटर कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिश्ड. कॉनकेव मिरर आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड and inner curved surface is reflects like this. You are seeing this. Outer side be polished and inner side be reflects. So it's called the concave mirror. And convex mirror is its inner concave surface is polished and outer convex surface is reflects. Inner is polished and outer is reflects. So it's called the convex mirror. You are seeing the pictures. Okay. So now this is the definition of the concave mirror and convex mirror. So it is clear that there are two types of the spherical mirror. Concave mirror and convex mirror. So now let's study about the concave mirror. This you are seeing the concave mirror. This is concave mirror, and one midpoint and यहाँ पर एक line travel passes through the point P. Point P is called the pole, and this line is called the principal axis. So it is called the principal axis, right? When ray of the light goes parallel to the principal axis, then after reflect, it passes through from the focus. All ray of light passes through from the focus. When the ray of the light goes parallel to the principal axis of the reflections, it passes through from the focus. You are seeing on the picture. This is a concave. This is a property of the light when through the concave mirror, right? So let's start our. यहाँ पर भी देख सकते हैं. This is the image for the convex mirror. But यहाँ पर क्या होगा कि आपका इनर पॉलिश्ड है, इनर साइड पॉलिश्ड है, आउटर साइड रिफ्लेक्ट्स हैं. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और ये पैरेलल है, और जैसे यहाँ पर आता है तो ये आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है. बट इट अपीयर दैट कि it is coming from the focus. It is coming from this point. It's appear that, not clear. It's appear. So
यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अपीयर्स होंगी, दिख रहा है यहाँ पर ये, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ फोकस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात करें। आइए लेट्स स्टार्ट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कॉनकेव मिरर। फर्स्ट पॉइंट इज अपर्चर। अपर्चर, व्हाट इज द अपर्चर? अब द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर rim of the mirror is called the aperture of the mirror. Hence aperture is the part of the mirror through which rays of the light entered in the diagram mm dash. यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ना, दिस इज पॉइंट, दिस इज एम डैश, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को पूरे को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। ये mm डैश इज द अपर्चर। यहाँ पर भी देखते हैं, दिस इज द अपर्चर, ये अपर्चर है। गेट क्लियर? सो नाउ हियर यू आर सीइंग आल्सो दैट pole. What is the pole? The center of the spherical surface of the mirror is called the pole of the mirror. The center of the spherical surface, जो स्फेरिकल सर्फेस का सेंटर जो होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ द स्फेरिक, यहाँ पर देख रहे हैं पूरा सेंटर जो होगा ये आपका पोल होगा, दिस इज कॉल्ड द पोल एंड डिनोटेड बाय द कैपिटल पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल ऑफ द विच इज द मिरर इज अ सेक्शन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सपोज दैट मैं आपको डायग्राम में यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ, ये आपका स्फेरिकल सेल है, यहाँ से कट कर लिया तो ये आपका पार्ट मिल गया। तो ये मिरर किस पार्ट का है? इस पूरे स्फेरिकल सेल का है। तो अगर हम इसको कहीं पर यहाँ पर सी मान ले, कहीं पर सेंटर होगा इसका, ओके, और ये आपका चूँकि ये कट कर लिया गया है, सपोज दैट हम यहाँ से कट करते हैं ये, और ये पॉलिश कर दे रहे हैं, ये पार्ट यहाँ निकाल लिया गया इसको, तो ये इसका सेंटर यहाँ होगा, तो ये पूरा जो सेंटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगी, तो यहाँ इस पॉइंट को सेंटर कहेंगे। वैसे भी इसको हम लोग पूरा डायग्राम में करेंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, जैसे जो डिस्टेंस यहाँ होगा, ये जैसे ये पॉइंट है, मान पी है ये, और ये सी है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पर देखो पी होगा, तो यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा वही डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट कर लें, दैट इज द सी, दिस इज द कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होता है? दिस इज अ पार्ट, मतलब जिस ये मिरर जो है, जिस सेल का पार्ट होता है, उस सेल के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा दूँ। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of the spherical cell of which the mirror is section is called the center of curvature of mirror. It is light outside of the surface. Every point of the mirror surface lies in the same distance तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो कि यहाँ से मिलाएंगे तो ये जैसे जिस मिरर का होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर ये है। तो आई रिपीट अगेन दिस पॉइंट, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल ऑफ द विच इज द मिरर इज अ सेक्शन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इट लाइज आउटसाइड ऑफ सरफेस। एवरी पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस lies at the same distance from it. It denoted by the capital C. In diagram, C is the center of curvature. Principal axis, I told you the principal axis. The straight line passing through the pole and the center of curvature. जो center of curvature और pole से जो center lines आती है, इस line को, ये line होती हैं, this is called the principal axis. Okay. The straight line passing through the pole and the center of curvature C of the mirror is called the principal axis of the mirror. Principal focus. It is a point on the principal axis. It is the point on the principal axis of the mirror such that
द रेज इंसिडेंट of the mirror parallel to the principal axis after reflection actually meet at the point और apparent, मतलब कॉन्केव के लिए एक्चुअली होगी और कॉन्वेक्स लिए apparent, जैसे कि मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए फोकस क्या होगा, अभी मैंने बताया कि स्ट्रेट एक पैरेलल टू इट इज गोज थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट द पॉइंट ऑल पॉइंट्स, इट पासेस थ्रू फ्रॉम द फोकस, दिस इज द पॉइंट कॉल्ड द एफ। ये सभी लाइन जो पैरेलल से उनको जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट द पॉइंट दैट इज कॉल्ड द फोकस। और एक्चुअली और दे अब दिस इज यहाँ पर एक्चुअली मीट होगी और यहाँ पर अपेरेंट मीट होगी। प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, the distance between the pole and the center of the curvature. Yes, you are seeing the picture again, and the distance between the center of curvature and pole is called the radius of curvature and denoted by the capital R. This is denoted by पूरा distance को हम लोग capital R बोलेंगे। And focal length, the distance between the pole and the principal focus. The distance between the pole and the principal focus of the mirror is called the focal length of the mirror. Focal length of the mirror, ये यहाँ पर देखिए, the distance between focus and pole is called the focal length of the mirror, यहाँ से यहाँ तक। But it is the midpoint of the C also, it is the midpoint of the CP also. So here CP is equal to R, and you can also say that CP is equal to 2F, twice F। यहाँ पर देख रहा है ये डिस्टेंस F हुआ, F एंड P का, और यहाँ से सी एंड पी का जो हुआ डबल एफ हुआ, 2F हुआ, और इट इज़ आल्सो इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2F, एंड यू कैन आल्सो राइट एट दिस फोकस एफ इज इक्वल टू R अपॉन 2, रेडियस अपॉन 2, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आपको दिया भी गया है प्रिंसिपल सेक्शन, ये प्रिंसिपल फोकल लेंथ में एफ इज इक्वल टू R/2, मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट हाउ रे ऑफ द लाइट ट्रेवल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन के डिफरेंट रेज ऑफ लाइट कैसे पासेस होती हैं, हाउ पासेस थ्रू फ्रॉम द मिरर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। Suppose that first, when the ray of the light travel in the parallel to the principal axis and after reflection it passes through from the focus. पहला point, first point, you noted it. When the ray of the light goes parallel to the principal axis, after reflection it passes through from the focus. Focus से pass होती है। Second point, when the ray of the light goes through focus and then falls on the mirror and after reflection it goes parallel to the principal axis, parallel to the principal, मतलब कि पहले पॉइंट में मैंने क्या देखा कि अगर ये पैरेलल जाएगी तो फोकस होकर जाएगी, अगर ये फोकस से होकर के फॉल्स हो रही है तो पैरेलल होकर निकल जाएगी। ठीक है। थर्ड थिंग्स, ये तो फर्स्ट थिंग्स हुआ, सेकेंड एंड थर्ड थिंग्स, व्हेन द रे ऑफ द लाइट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो सेम साइड से लौट जाएगी, वो उसी सेम पास से लौट जाएगी। अगर यहाँ से सी से होकर के आ रही है और फॉल्स होगी तो वो लौट आएगी वो। ओके, तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे। यहाँ पर वही चीज़ें अपीयर होंगी फर्स्ट पॉइंट में कि दिस इज द, ये कॉनकेव मिरर्स के लिए है और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो क्या होगा कि ये फोकस से होकर अपीयर महसूस होगी कि अपीयर होकर आ रही है फोकस होकर के। सेकेंड थिंग्स, अगर वो ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर वो फोकस से होकर जाएगी पहले जाएगी तो इससे निकल जाएगी। सेकेंड थिंग्स, फोकस से अगर वो एंट्री करती है तो पैरेलल महसूस होगी, पैरेलल जाएगी। और थर्ड थिंग, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से महसूस होगी तो वो सेम पास से लौट आएगी।
बट यहाँ पर सारे केसेस में अपीयर होगा और यहाँ पर रियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं कि आइए देखते हैं कि कैसे ये मिरर्स बनाते हैं, कैसे इमेज बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो अभी आपने देखा कि ये कुछ रेज ऑफ लाइट हैं, वो कुछ जैसे जैसे जिस टाइप से वो थ्रू जाएंगी और जिस पाथ से होके जाएंगी तो उसका रिफ्लेक्शन का जो मीडियम रिफ्लेक्शन का जो पाथ होगा वो किस टाइप से होगा मैंने बता दिया। 3 कंडीशंस होंगे। अब उसी कंडीशंस को यहाँ अप्लाई करके हमें ये देखना है कि इमेज कैसे बनता है। डिफरेंट किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर अगर रखेंगे तो डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट बनता है। मीन्स द कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड डिफरेंट इमेज if the object placed at a different पोजीशन पर कॉनकेव मिरर डिफरेंट बनाता है। तो आइए देखें फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट कहीं बहुत दूर रखते हैं तो कहाँ बनता है, तो इमेज कहाँ बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट कहीं पर रखें तो ऑब्जेक्ट कहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर कहीं पर दिखाया नहीं गया ऑब्जेक्ट को, इस टाइप से कहीं नहीं दिखाया गया है। तो बहुत दूर है कहीं पर, तो वहाँ से रे ऑफ द लाइट यहाँ पर जाएगी तो लौट के आएगी यहाँ पर। अगर वो पोल पर जाएगी तो ऐसे लौट के आएंगी। फोकस से मतलब कुछ इस टाइप से आपके रेज बनेंगी और देख रहे हैं कि वो इमेज जो बनेगा फाइनली आई थिंक जब इमेज बनता है, इमेज कैसे बनता है, द आफ्टर रिफ्लेक्शन द ऑल रेज ऑफ द लाइट मीट एक्चुअली और अपीयर एंड मीट एट द पॉइंट, जहाँ पर पूरी आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर लाइट पूरी तरह से मिलती है वही पॉइंट पर इमेज बनता है। सो यू आर सीइंग द व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट then image formed at the focus, you are seeing the focus and very small size. I think you can also say that is the image formed very point size बनेगा, point size बनेगा and real and inverted बनेगा। रियल इमेज आई थिंक यू नो दैट रियल के मतलब इमेज 2 टाइप्स बनाते हैं मिरर्स, रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक लाइन बता दो रियल्स क्या होते हैं। रियल दोज इमेज कैन obtained on the screen, or you can also say that the after reflection all ray of the light meet actually at the point, then image formed a real image, just like as a picture hall, a picture cinema hall, you are seeing the picture in the cinema hall, that is type of the real image. And virtual image, those image cannot obtain on the screen, तो वहाँ पर आपका इमेज वर्चुअल बनेगा। जैसे कि आप कोई मिरर्स में देखते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं होती है। द रे ऑफ द लाइट डज नॉट एक्चुअली मीट एट द पॉइंट, दे अपीयर मीट एट द पॉइंट, सो दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। सो रियल इमेज, तो इमेज फ्रॉम द रियल इमेज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यू आर सीइंग द ऑब्जेक्ट ए पी बियॉन्ड सी, इसके पहले है, यू आर सीइंग दैट। तो जो पैरेलल होकर जाएगी तो फोकस से होकर लौट के आएगी और जो फोकस से जाएगी तो यहाँ से लौट के आएगी। तो इमेज देख रहे हो कि पूरे दोनों इमेज कहाँ पर कट कर रही हैं, बिटवीन सी एंड एफ पर, बिटवीन सी एंड एफ पर बन रही है, यानी इमेज बन रही है ए बी पर, ये ए बी इमेज बन रही है, दिट इज द ए बी इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट, सो ए बी डैश। सो it means you can say also that when the object beyond C, then image formed between C and F, between C and F मतलब center of curvature and focus, center of curvature और focus के बीच बनेगा। थर्ड पॉइंट इज when the object at the C पर होगा तो क्या बनेगा, देखिए पैरेलल टू जाएगा तो फोकस होकर जाएगा, फोकस से आएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा और सेम बनेगा, सेम पॉइंट पे यहाँ क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स इमेज यहाँ बन रहा है। सो इट कैन आल्सो से दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द सी, इमेज फॉर्म्ड एट द सी बनेगा, सेम साइज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड बनेगा, यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड बनेगा। अभी मैं आपको एक उसमें
एक एट ए ग्लांस में आपको मैं उसको पिक करके भेज दूंगा, तो आप उसको एक बार में समझ लेंगे कि ये मतलब एक चार्ट भेज दूंगा आपको। आई थिंक आपके पास होना भी चाहिए चार्ट, तो आप उससे समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक चैप्टर आल्सो। तो यहाँ पर आप इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा, प्रैक्टिकल फॉर्म में भी और थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये। सो नाउ लेट्स स्टार्ट and to go this point when the object between C and F, this is the ये केस आपको कॉन्केव मिरर के लिए सारी चीज़ें, अभी कॉन्वेक्स लिए नहीं है, दिस ओनली फॉर द कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के when the object between C and F, ऑब्जेक्ट क्या है C and F है, बिटवीन C and यहाँ पर है। तो देखिए पैरेलल जाएगा तो यहाँ से लौट के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी, और फोकस होकर जाएगा तो यहाँ आ जाएगी। दोनों ये सभी रेज ऑफ लाइट कहाँ पर बियॉन्ड सी बन रहा है, बियॉन्ड सी क्रॉस कर रहा है। आप देख रहे हैं वाज सीइंग दैट कि दिस इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। ऑब्जेक्ट बिटवीन ए एंड बी, ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड ए डैश बी बन रहा है, ये बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। देख रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट आपका ऐसे सभी में देखिए कि फर्स्ट में भी देखेंगे ऑब्जेक्ट कहीं पर, तो यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज आपका ऐसे मतलब कि इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, सभी में देख सकते हैं यहाँ पर भी और सिंगल। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ए बी, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ देन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर बियॉन्ड सी ए डैश बी डैश एंड लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए साइज अब बढ़ रही है, जैसे जैसे इनफाइनाइट से आगे की ओर इमेज जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इमेज की साइज भी बढ़ रही है। यहाँ पर थोड़ी सी और बड़ी हुई, यहाँ पर इक्वल हुई, और यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द एफ, तो इमेज फॉर्म्ड ये सभी पैरेलल्स हो जाएंगी और एक बहुत इनफाइनाइट बनेगी। अगर ये फोकस पर रखेंगे तो इमेज आपकी इनफाइनाइट पर बन जाएगी, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ इट्स। पहला पोजीशन में क्या, अगर इनफाइनाइट पर होगा तो फोकस बनेगा, और फोकस पर होगा तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब एक लास्ट पॉइंट है जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल है यहाँ पर, कि अगर बिटवीन एफ एंड पी हो, यानी अब आगे हो जाए, ये हो जाए, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए, तो अब इमेज की साइज, अब इमेज कहाँ हो जाएगा, इमेज अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर बनेगा, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट होगा एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। लार्जर बियॉन्ड मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट एफ एंड पी पर होगा, देन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर बियॉन्ड मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो दिस इज द, ये केसेस हैं, तो आई थिंक कितने केसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर आर 6 केसेस हियर फॉर द कॉन्केव मिरर। तो इट मीन्स यू कैन से also that you can put, if you put the object in the different position in the front of the concave mirror, then mirror formed, then concave mirror form the different image in different position, different size, right, different size बनेगा। तो ये आपका इतना ये क्लियर हुआ। ये आपको इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा, तो एक्सपेरिमेंट में भी आपको ये अगर बेसिक्स आपको समझ में आएगी तभी क्लियर होगा है। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वो आज नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं सेंड करूँगा, क्योंकि वीडियोस अब बड़े हो रहे हैं, लार्ज हो रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट पर मैं एक बार फिर से फोकस करूँगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर डिपेंड करेगा योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। हाँ, सो योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, यू कैन नोट डाउन आल्सो दैट, क्योंकि इसके बाद आपका स्टार्ट करूँगा जब नेक्स्ट वीक में, अब आज तो नहीं, आज तो आपको खाली इतना ही समझना है आपको। तो क्या होगा, योर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, क्या फोकल लेंथ, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू टेक अ कॉन्केव मिरर, दिस इज द कॉन्केव मिरर, एंड इफ़ यू पुट द ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट पर रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द फोकस, यू नो,
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहाँ क्या बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। और जब फोकस पर बनेगा तो यू विल फाइंड आउट द फोकस पॉइंट, यू विल फाइंड द फोकस पॉइंट एंड already point P is given, P is the pole, and you can measure, and if you measure the distance between the focus and pole, this is called the focal length. Okay, if you want to find out the focal length, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उस फोकस पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फोकस पॉइंट जब फाइंड आउट हो जाएगा तो डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगा दैट इज द फोकल लेंथ। तो इस कंडीशन में जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पर होंगे सिंपल सा यही होगा, आपको बड़ी बात समझ में आ जाएगी। तो सिंपल सा यही होगा कि ऑब्जेक्ट को कहीं बहुत दूर पर रखें, जितना दूर हो सके रखें, और उस ऑब्जेक्ट को ये लैब में ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सारे सिस्टमेटिक चीज़ें हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसका फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं। किसी बाहर के ट्रीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इस पॉइंट को आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, इसको मैं और भी आगे नेक्स्ट करके समझाऊंगा। कुछ पॉइंट्स हैं, साइन कन्वेंशन और सारे रूल्स हैं, तो वो सभी पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं कंफर्म करा दूंगा, और ताकि वो सारे कंफर्म रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी किसी चीज़ को समझने के लिए। तो एंड दिस इज़ माई अगेन मैं एक एडवाइस मैं हमेशा अपने वीडियोस में देता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है वीडियोस को कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स आप ज़रूर देखा करिए। जब आप 2 बार देखा करेंगे तो निश्चित तौर पर चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका आज का वीडियो है, और आप ये एक समरीज है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके या इसको आप देख सकते हैं। मैं इसका पिक भी भेज दूँगा, ये बहुत ज़रूरी है आपका, हाँ ये आपका बहुत ज़रूरी है, और इसको हमेशा बिल्कुल जबान भी होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कैसे इसको वो करेंगे, लर्न करेंगे। ये बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए आपको एक ज़बान में, क्योंकि अब आगे मैं कोई क्वेश्चंस भी आपसे करूँगा तो विद इन 10 सेकेंड्स आपके जवाब आने चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे क्या होगा सोचने की, हाँ तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। कुछ आपके साइन कन्वेंशंस रूल हैं, बट इस साइन कन्वेंशन रूल्स को भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको करूँगा, क्योंकि अभी ये वीडियोस बड़ा हो रहा है। तो मैं आई थिंक मैं यहाँ से वीडियोस को एंड कर रहा हूँ।